پہ جو ظلم کر رہی ہے اس کی داستان بالکل الگ ہے. یہ کچھ برات یافتہ لوگوں کو، کچھ اشرافیہ کو، کچھ خاص لوگوں کو نوازنے کے لیے کے الیکٹرک کو پالا جا رہا ہے. یہ نظام نہیں چل سکتا، اس کی موجودگی کے اندر بزنس ترقی نہیں کر سکتا. اس لیے ہم اس کے اوپر مسلسل جدوجہد میں ہیں. اور میں رضوان عرفان صاحب، ناصر ترک صاحب، سلیم میمن صاحب اور آپ سارے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اس دن تک اس آواز کو بلند کرنا ہے جب تک آئی پی پیز کے سارے معاہدے درست نہیں ہوتے اور جب تک بجلی کی فی یونٹ قیمت کم نہیں ہو جاتی. اس وقت تک ہمیں اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. ہمیں اس کے اندر کوئی مایوسی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تھوڑی سی جدوجہد کی تو پہلے مرحلے میں کئی آئی پی پیز کے معاہدے منسوخ ہو گئے کہ آئی پی پیز کے بارے میں تو بات ہی نہیں کی جا سکتی. اس لیے کہ اگر ہم ان کو چھیڑیں گے تو یہ عالمی عدالت میں چلے جائیں گے اور پاکستان کو جرمانے ہوں گے. لیکن ہم نے تسلسل کے ساتھ اس بات کو کیا، ہم نے اس کے اوپر صدائے احتجاج بلند کی اور تاجر اور تجارت کے تحفظ کے لیے ہمیں یہ ہمارے درمیان قدر مشترک ہے جس کی بنیاد پہ ہم سب اکٹھے ہیں. اور ہمارا درد مشترک یہ ہے کہ اس ملک کے ظالمانہ نظام سے تاجروں کا تحفظ، یہ وہ درد ہے جس کی بنیاد پہ ہم اکٹھے ہیں. اور آپ پھر دوبارہ تشریف لائیں، میں اس پر بھی آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کی طرف سے آپ سب کا اور کراچی بھر کی تمام تاجر تنظیموں کا، کراچی کے تمام تاجران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے کاروباروں کو بچانے کے لیے، اپنی دکانوں پر ظالمانہ ٹیکس نہ لگنے دینے کے لیے مکمل کراچی کے اندر شٹر ڈاؤن کیا. اس پر میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور یہ علامت ہے ہمارے اتحاد اور ہماری یکجہتی. اسی دن کوئٹہ کے پریس کلب کے سامنے، خیبر پختونخوا کے پریس کلب کے سامنے، لاہور کے پریس کلب کے سامنے، ملتان، ڈی جی خان، ڈی آئی خان، فیصل آباد، سیالکوٹ، سرگودا، چنوٹ، پنڈی، سکر، اسلام آباد کے پریس کلبوں کے سامنے بھی مظاہرے ہوئے. رضوان عرفان آج کے بعد اکیلا نہیں، رضوان عرفان کے ساتھ پورا مرکزی تنظیم تاجران پاکستان ہے. رضوان کے ساتھ پورا پاکستان. مرکزی تنظیم تاجران زندہ باد، مرکزی تنظیم تاجران زندہ باد، ہاشم چودھری صاحب زندہ باد، بالا صاحب زندہ باد. انشاءاللہ باتوں پہ عمل کر کے دکھائیں گے. چاہے ٹیکس کا مسئلہ ہو، چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہو، مارکیٹوں کا مسئلہ ہو، موبائل کپڑوں کا مسئلہ ہو، چاہے دہشت گردی ہو، چاہے اغوا برائے تاوان ہو. ہم حکومت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ٹیکس ہم سے مانگے، عیاشیاں خود کرے. ٹیکس ہم سے مانگے، ان کی بیگمات لندن میں عیاشیاں کرے، اربوں کروڑوں روپے کے بنگلوں میں رہے، ایک ایک ایم این اے کے پاس، ایک ایک منسٹر کے پاس، ان کے بیگمات کے پاس، ان کے بچوں کے پاس 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں ہوتی. ہم کسی کے باپ کے ملازم نہیں. 17 قسم کے ٹیکس ہم دے رہے، پہلے سے 17 قسم کے ٹیکس ہم دے رہے. پتہ چلتا ہے رات کو 12 بجے 1 بجے کے کسٹم والے آتے اور لائٹ ہاؤس میں، گلستان جوہر میں، طارق روڈ میں دکانوں پہ چھاپے مارتے. اس طرح مارتے ہیں کہ دکانوں کے تالے توڑ کے وہاں سے مال نکالتے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈاکو. یہ ڈکیتی ہے کسی کے، جیسے آپ کسی کے گھر کتے ہو، وہاں سے چیزیں چرا کے لے جاتے، ہم اس کو کہتے ہیں اب چور ہو، آپ ڈکیت ہو. ہم پیسہ کتنی کمائی سے، کتنی مشکل سے کماتے ہیں. اس گرمیوں میں بیٹھ کے، اس سردیوں میں بیٹھ کے، نہ ہماری جمعے کی چھٹی ہے، نہ اتوار کی چھٹی ہے. صبح کس ٹائم ہوتے، رات کو ہم کس ٹائم جاتے. ہاسپٹل جانے تک ٹائم نہیں ہوتا اپنے بچوں کے پاس. لیکن یہ بدبخت لوگ
फिर भी इस्लामाबाद में बैठते कि यार ताजिर टैक्स छोड़, इस मुल्क को कौन चला रहा है? क्या इनके बाप के पैसे, ससुराल से आए हुए, जेल में आए हुए इनके पास पैसे? इस पूरे मुल्क को चलाने वाले हम हैं। और एक बात, अगर ताजिर खुश होगा तो ये मुल्क पाकिस्तान खुश रहेगा। और जिस दिन मैशियत का पहिया रुक गया तो पाकिस्तान के लिए हमारे पास एक अल्फाज है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब इनके करतूतों को हम देखते, आज से 2 महीने पहले चीफ साहब आपके पास नहीं है, कराची नहीं आए थे, अस्सी मुनीर साहब क्या कह रहे थे? साफ बात हम करें कि इस टाइम मुल्क दिवालगी की तरफ है। अब एक उम्मीद कायम है कि ताजिर हमें पलट दे, ताजिर इस मुल्क का सहारा बने। इस मुल्क पे जब भी आफत आए, जिलजिले आए, सैलाब आए, किसने साथ दिया? मुस्लिम लीग ने दिया, पीपल्स पार्टी ने दिया। इस ताजिरों ने जी भर के दिल खोल कर इस मुल्क को बचाया। ये मुल्क हमारा है, किसी का नहीं है। ये लोग तो आते सूटकेस लेके, 5 साल हुकूमत की, अगले दिन चले गए। कोई दुबई जाता है, कोई लंदन जाता है, कोई सऊदी अरब जाता है। हमने तो इस मुल्क में रहना है, हमने कहीं नहीं जाना। हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान के साथ है। हम तो 14 अगस्त भी यहाँ पे बनाते, हम तो 23 मार्च भी यहाँ बनाते, हम तो ईद मिलादुन्नबी में भी यहाँ होते, हम तो मुहर्रम में भी यहाँ होते। पाकिस्तान का झंडा उठाना भी हमारी ठेकेदारी है। हमने इस मुल्क को सहारा दिया था, हम इस मुल्क को सहारा देंगे इंशाअल्लाह। ये लोग तो पाकिस्तान के मामे बने पे, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो। भाई आपने मुझे क्या दिया? बिजली में खुद खरीदता हूँ, गैस में खुद खरीदता हूँ, बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मैं तालीम दिलवाता हूँ, अपने मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों में मैं तालीम दिलवाता हूँ, उनको अस्पताल में इलाज में खुद करवाता हूँ, पानी की टैंकी भी मैं खुद बनवाता हूँ। तो जब ये सब खुद मैं करता हूँ, तुम्हें किस चीज का टैक्स दूंगा? तुम तो अयाशियां करते हो। पिछले गवर्नमेंट से, इमरान खान की गवर्नमेंट से पहले हमारे डेलीगेशन गया था, वफ्द गया था अमेरिका, जो वजीर खारजा मुलाकात हुआ, तो कहते हैं उन्होंने सवाल किया, साथी भाई बैठा हो, उनको सब पता है कि जो आपने सूट पहना है इसका क्या कीमत है? उसने कहा 70 लाख रुपए। 3 पीस सूट 70 लाख रुपए के किसने दिए पैसे तुम्हें? हम तो अगर कोई प्लाजा खरीदे, अगले दिन टैक्स आता है कि यार पैसे कहां से है, अपने ब्लैक को बोलता है सफेद करो, और अपने पैसे कहां रखे? दुबई में, सऊदी अरब में, लंदन। रखे नहीं रखे? तो आज जब हम निकले हैं, हमारा मकसद एक है कि जब तक तमाम ताजर बरादरी एक नहीं होती, अब ये हाथ है, ये उंगली अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, जब आप इसको बंद करो, ये बनता है मुक्का, और जिसके मुंह पे लगा उसके सारे दांत पाए। मैं कभी कभी सुनता हूँ कि यार पुलिस वाले आते हैं, रेंजर वाले आते, डीसी साहब आते, ऐसे आते, मजिस्ट्रेट आते, दुकानदारों को तंग करते हैं। थाने में जाओ, बगैर रिश्वत का कोई काम होगा? कचहरी जाओ, कोई काम होगा? डीसी ऑफिस जाओ, बगैर पैसों का कोई काम होगा? नहीं होगा। तो आज मैं पूरे पाकिस्तान की जानिब से, जब भी आपके पास टैक्स वाला आएगा, यार कुछ नहीं होता, खुदा की कसम कुछ नहीं होगा। जब कोई टैक्स वाला आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में आ जाए, सदर में आ जाए, यार इतना हिम्मत करो एक दफा कि उसको मार्केट के अंदर बांध दो, और दोस्त को टुडे पता चलता है कि यार तुम कितने पानी में हो। मैंने इसको दावत दिया
कि आप कोयटा ताजरान का कन्वेंशन है, 10 लोगों को और उठा कर लाए, 3 दिन मेरे साथ रहा, 3 दिन मेरे साथ रहा, अपना कारोबार छोड़कर, बच्चों को छोड़कर। कौन करता है यार? तुम्हें भी आज मेरे साथ पूरे पाकिस्तान का सदर बैठा हुआ है, सीनियर वाइस चेयरमैन शेख हबीब बैठा हुआ है। जो मसले मसाइल है आप हुक्म करो। कल प्रेस क्लब के सामने बैठना है, रोड पे हम बैठेंगे, नहीं जाएंगे उस दिन तक। वजीर आला के सामने बैठना है, हमने बैठना है, डीसी ऑफिस के सामने बैठना है। किसी का बाप रोड से हमें नहीं उठा सकता जब तक हमारे मसले हल ना हो। मैं एक बार फिर आप तमाम दोस्तों का, रिजवान भाई का, अजनासिर तुर्क साहब का, सलीम साहब का बेहद मशकूर व ममनून हूँ। डोर टू डोर मुलाकात हो रही। ये जिस प्लेटफार्म पे हम आज बैठे हुए हैं, ये प्लेटफार्म अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे। इरफान भाई के साथ मैंने बहुत काम किया है, हाजी नासिर साहब बैठे हुए हैं, सलीम मेमन भाई बैठे हुए हैं, ये सब हमारी सीनियर क़यादतों में साथ इनके साथ चला। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी शोबे के अंदर इलेक्ट्रॉनिक के जो लोग हैं, डीलर्स हैं, पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन और मजबूत जो है वो इरफान भाई का जो ग्रुप था, वो पूरे कराची में पूरे पाकिस्तान का। तो इस अम्ब्रेला के नीचे जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं कराची इलेक्ट्रॉनिक के अंदर, मैं इन सबको मुबारकबाद दूंगा। और मैं ये समझता हूँ कि आप जिस अम्ब्रेला में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उस अम्ब्रेला के अंदर आपको तहफ़्फ़ुज़ भी मिलेगा। और कराची के तमाम डीलरों को मैं समझता हूँ कि उनके मामलात के, उनके हकूक़ जायज़ वो हर तरीके से जो है मैं समझता हूँ रिजॉल्व करते हैं। तो मैं मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के काशिफ़ चौधरी भाई को बताना चाहता हूँ कि कराची में अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 क़यादतें हैं जो कि अपने आप को भरपूर इस कराची को मनवाती हैं। और ये वो शहर है जिसको हम मिनी पाकिस्तान कहते हैं और सिंध का दारुल खिलाफा है। 70 से 72% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है और 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हर सियासी जमात इसे ऑन तो करती है, इसकी दावेदार तो बनती है, लेकिन इस पर जो है मरहम रखने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरा कराची इस वक्त तबाही के आलम में मौजूद है। आपने दौरे किए, आपने रोडों का अंदाज़ा किया, लाइटों का आपने अंदाज़ा किया कि कितनी लोड शेडिंग हो रही है, कितने मामला हैं। यानी कि ये वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह चलाता है। तो काशिफ भाई, जैसे कि अभी FBR के हवाले से जो मामला हुआ था, तो आपकी एक आवाज़ आई है और रिजवान भाई ने और हमने मिल के पूरे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ताजिरों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक प्लेटफार्म पे बैठे और पूरा कराची डोर टू डोर बंद हुआ। हत्ता कि आपके पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में गिलगित बल्तिस्तान भी आपका बंद हुआ। और मैं आपको इस बात पे मुबारकबाद दूंगा कि आप कराची तशरीफ लाए और उम्मीद करते हैं कि जो FBR वाले जो मसाइल हैं, बिलखुसूस वफाक में आप बैठे हुए हैं, वफाक की अलामत है आप। तो मैं ही समझता हूँ कि इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश होगी, ये जो टेबल वाला जो निज़ाम आया हुआ, इसमें तो आपने काफ़ी हद तक इसको डिबेट की भी है। तो ये टेबल जो सिस्टम है ना, ये अब्दुल्ला हारून रोड है, यहाँ पे 60,000 रुपये का टेबल दिया। जब चेयरमैन FBR से हमने मुलाकात की तो उसने दोबारा कहा जी हम इसको चेंज कर देते हैं। तो वो टेबल चेंज करने के बजाय वो दूसरा फिर टेबल उन्होंने वही बनाया। तो हम तो इस पॉलिसी को ऑलरेडी रिजवान भाई समेत इन्होंने बयान चलाया, मैंने भी चलाया कि हमने इसको इग्नोर किया है कि ताजिर दोस्त स्कीम को हम नहीं मानते, क्योंकि ताजिर दोस्त स्कीम के अंदर वो जो चीज़ें डाली गई हैं, वो तरीक़ेकार, उसका जो मैकेनिज़्म है वो सही नहीं है। पिछले 2018 के अंदर भी हमारे चेयरमैन FBR से मुलाकात हुई, रिजवान भाई आपको याद होगा, तो उसमें हमारी बात हुई थी बिजली के बिलों के ऊपर। उन्होंने उस पर कहा था कि 6 लाख रुपये तक का जो बिजली का बिल आएगा उसके ऊपर इतना टैक्स होगा इस पर। तो हमने उनको शराब सिस्टम जैसा कि 500 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक का सिस्टम बनाया जाए। अभी हम ये जो ये मैकेनिज्म जब बंद कर आए तो हम ये समझे कि शायद ये उसी का तसल्तुल है जो उन्होंने लोगों को ख़राब किया 1200 रुपये के नाम से। इस 1200 के पीछे जो है ना वो इन्होंने रेडी वाले के लिए किया है, दुकानदार के लिए नहीं है। अब्दुल्ला हारून रोड इतना बड़ा, मुझे बताइए कि अब्दुल्ला हारून रोड में 70% लोग जो है वो किराएदार हैं। मुझे बताइए वो 60,000 रुपये महीना कहाँ से अदा कर सकता है। मेरा मोबाइल का दुकानदार है, मेरा इलेक्ट्रॉनिक का दुकानदार है, सेल कारोबारी पोजीशन बहुत ज़्यादा मईशत आपको पता है। 2019 से जो कोविड का सिलसिला चला है और अब तक मेरा कराची का ताजिर अभी तक संभल नहीं पाया, वो कर्जे के नीचे डूबा हुआ है।
कंपनियों के मामला ख़राब हो रहे हैं। टैक्स कंपनी हमारे को इंसेंटिव के नाम पे हमसे पैसे चार्ज करती है और हमारी मजबूरी है कि हमें बैठना पड़ता है। 30% तो कराची का ताजिर जो है वो परेशान होकर दुकानें छोड़ने पे मजबूर हो चुका है। तो अपना इरफान भाई, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हमने और आपने मिल के इस चीज़ को चलाना है। अब्दुल अजीज काशिफ चौधरी साहब, सदर तंजीम ताजरान पाकिस्तान, हमारे बड़े भाइयों बल्कि वालिद की जगह हमारे कय्यूम आगा साहब जनरल सेक्रेटरी तंजीम ताजरान पाकिस्तान, हमारे बड़े शेख हबीब साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तंजीम ताजरान पाकिस्तान, हमारे सलीम मेमन साहब वाइस प्रेसिडेंट, हाजी नासिर तुर्क साहब जनरल सेक्रेटरी, हमारे चेयरमैन रीगल एरिया सफ़ीर भट्ट, जॉइंट सेक्रेटरी हमारे जावेद मोहम्मद अली, माजिद भाई और तमाम हमारे यहाँ के कराची के ओहदेदारान, दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं काशिफ चौधरी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ, कय्यूम आगा साहब का, कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए हमारे ऑफिस। इससे पहले भी जो है काशिफ चौधरी साहब आ चुके हैं और हम तो कय्यूम आगा साहब के जो है वो पहली मरतबा कोयटा जाना हुआ कय्यूम आगा साहब के तवज्जुह से। तो ये जो कोयटा जाने का जो है सहरा हमारे कय्यूम आगा साहब को जानता है। फिर एक और मरतबा हर साल जो है ये तकरीब रखते थे, पूरे पाकिस्तान से ताजिरों को बुलाते थे। 2 मरतबा मैं इनकी मेज़बानी में मैं गया कोयटा, माशाल्लाह बड़ी इन्होंने खिदमत की, बड़ा जो है ख्याल रखा, हम इनके मशकूर हैं। और इसी तरह जो हमारे काशिफ चौधरी साहब माशाल्लाह इस्लामाबाद में होते हैं, पूरे पाकिस्तान के ताजिरों को लीड करते हैं, मसाइल सुनते हैं, मसाइल उनके हल करते हैं। अभी जो एक टैक्स का मसला हुआ था, जो 60,000 रुपये जो एडवांस इनकम टैक्स था, बिजली के जो बिलों पे जो है वो टैक्सेस लग रहे थे, इसके अलावा IBPs का जो मसला था, IPPs का वो था, वो माशाल्लाह इन्होंने जो है बड़े खुश उसलूबी से हल किया और डटे रहे उसमें। और तमाम पूरे पाकिस्तान के ताजिर इनके शान बशाना साथ खड़े थे। इसमें कराची इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न भी जो है वो साथ थी इनके, और कराची ने जो है वो दिखाया कि हम जो है वो पूरे पाकिस्तान के साथ हैं। और माशाल्लाह एक भरपूर हड़ताल की और वो कामयाब हड़ताल हुई, और उसमें जो है गवर्नमेंट ने जो है फिर जो चीज़ें गलत लगाई थी उसको उनको रोकना पड़ा। एडवांस इनकम टैक्स का मसला अभी रुक गया। इसके अलावा जो IPPs का मसला आपको पता है, उसमें जो है माशाल्लाह जो नए शेड्यूल हुए हैं उनके, अपना जो उनके एग्रीमेंट थे, इसके अलावा बहुत से IPPs को बंद किया। उसकी वजह से इंशाल्लाह आगे जो है वो मुल्की ख़जाने को फ़ायदा भी होगा और पाकिस्तान के अवाम को और कराची के जो लोग हैं उनको भी जो है इससे इस्तेफ़ादा होगा, उससे बिजली सस्ती होगी। ये अमल जो है वो जारी और सारी रहेगा। ये कोऑर्डिनेशन जो है हमारी इन सब के साथ जो है वो जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह। हम ताजिरों के मफाद में काम करेंगे, उनके मसाइल हल करेंगे। कोई भी तकलीफ़ हुई, कोई भी परेशानी हुई, इंशाअल्लाह हम तंजीम ताजरान पाकिस्तान के साथ हैं और इंशाअल्लाह आगे भी साथ चलेंगे। काशिफ चौधरी साहब माशाल्लाह वो मीडिया पे जो है माशाल्लाह बात भी करते हैं आवाम की और स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं। उनको माशाल्लाह बात करने का तरीका भी पता है, उरूर भी है, और जो है वो दलील से बात करते हैं, सारी चीज़ें समझाते भी हैं, समझते भी हैं। जो हुकूमत की जायज़ बातें हैं वो सुनते हैं, मानते भी हैं, और जो ताजिरों की जो मफाद की बात है वो उनसे मनवाते भी हैं। तो मैं ऐसे ही लीडर की ज़रूरत है जो आवाम का फ़ायदा सोचें, ताजिरों का फ़ायदा सोचें, जो उनके मसाइल हल करें। इंशाअल्लाह आगे भी जो है वो कोई भी अगर खुदा न खास्ता ताजिरों के साथ कोई बुरा वक्त आया तो इंशाअल्लाह तंजीम ताजरान पाकिस्तान जो है उनके साथ खड़ी होगी और कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन जो है उनके साथ हमवज खड़ी होगी माशाल्लाह। इनका कोई तकरीबन 12 से 13 दिन हो गए ये पूरे सिंध का इन्होंने दौरा किया इंटीरियर का। उसके बाद अभी कराची में जो है विज़िट कर रहे हैं तमाम एसोसिएशन में। अभी भी जो है
परसों माशाल्लाह रवानगी है इनकी। अभी ये फेडरेशन में भी गए माशाल्लाह, फिर चैम्बर में भी गए, अभी चैम्बर से वो क्या हैं, इसके तमाम जो है नुमाइंदा तंजीमें हैं, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, और माशाल्लाह शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं कि तमाम कराची वालों ने जो है इनके साथ भरपूर साथ दिया। तो यही एक कोऑर्डिनेशन है, ये एक जो है आपस में जो है एक मुत्तहिद हैं लोग। हम मुत्तहिद रहेंगे तो मसाइल हल होंगे, अगर हम इसी तरह टोरियों में बटते रहे तो मसाइल हल नहीं होंगे। तो आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आइंदा भी अगर कोई ऐसा कदम हमें बढ़ाना पड़ा, चाहे वो हड़ताल की सूरत में हो, चाहे वो एहतजाज की सूरत में, अल्लाह ना करे ऐसा मौका है, लेकिन आपको साथ देना होगा और साथ खड़ा होना होगा। इंशाअल्लाह आप लोगों के साथ जो है वो कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन साथ खड़ी है। तमाम बात का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं काशिफ चौधरी साहब से दरख्वास्त के बल्कि कयूब आगा साहब पहले हमारे जनरल सेक्रेटरी, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो कुछ बात करें ताकि कुछ जो है मसले मसाइल के मुतालिक जो है वो आगाही हो सके। काशिफ चौधरी हमारे पास यहाँ मौजूद है और ये बड़ी गहरी निगाह रखते हैं जो इनकम टैक्स के और जो हुकूमत आगे पीछे होती है उसके ऊपर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और बाकायदा फाइट करते हैं और जवाब देते हैं। तो हमें यकीन है हम इनके साथ हैं, ये जो कदम उठाएंगे हम इनका साथ देंगे, क्योंकि ये चाहते हैं कि ताजिरों को सहूलत मिले। और कोई तो होता है ना, और एक चीज़ मैंने इनको देखा है, इनको कोई लालच नहीं है। बाज़ लोग तो जो है इधर उधर हो जाते हैं, कोई हुकूमत दे देती है, मगर इनको ऐसा नहीं है। तो इनके लिए भरपूर तालियां। थैंक यू। मैंने जो था मैंने